Hi, Bachu. A very, very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. Let's get started with today's session where we are going to discuss about the warfare for wealth in medieval India. The chapter that we are doing is Kings and Kingdoms. So basically, यहाँ पे हम medieval India में कौन-कौन सी dynasties थी, क्या-क्या developments हुई, कैसे-कैसे shift आया, क्या invasions हुई, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. A quick reminder to you, I have given it multiple times in the previous sessions of this chapter as well. हमने 2 सेशन कर लिए हैं, which is that the medieval period basically refers to 7th century to kind of 18th सेंचुरी यानी कि 1700 1750 टू बी प्रिसाइज. इस पीरियड को हम मेडिवल इंडिया कहते हैं, मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं. अब वो चाहे इंडियन हिस्ट्री हो या वर्ल्ड हिस्ट्री हो, इट डजंट मैटर. Post this, the history is known as modern history, which is going on till date. And before this, what it was known as, or what it is known as, is ancient history. Okay. So the topics roughly in which the chapter can be divided are emergence of the new dynasties, their administration, what are prashastis, foreign invasion in India, warfare for health and for wealth in medieval India, and the Chola Empire. So this is the portion that we are going to do today. However, this is the section which was left over from the previous session. हम foreign invasion previous session में ही करना चाहते थे, लेकिन हमने finish नहीं किया था, तो वो हम आज complete करेंगे. What we have done is we have understood कि कैसे नए dynasties emerge होने लग गए. Who were the who were the Samantas, Mahasamantas, Mahamandaleshwaras, the lords, the overlords, how, like for example, Rashtrakutas replaced the Chalukyas. ये सब हमने किया. फिर हमने इनके administration के बारे में और प्रशस्तीज के बारे में समझा in the previous session. Now we'll do a quick recap for you to be able to revise and brush up of what we have done. And if you've not seen the previous session, do watch it. और आज हम foreign invasion, जहाँ पे महमूद गजनी और आपका मोहम्मद गौरी सबकी बात करेंगे. महमूद ऑफ गजनी, warfare of wealth and Chola Empire. Basically south में क्या चल रहा था वो भी हम करेंगे बात, और वो भी हम करेंगे discuss. So the concepts that we are going to do is warfare for wealth, the tripartite struggle for Kannauj, exploits of Sultan Mahmud of Ghazni, Kitab ul Hind of Al Biruni. Then we'll also talk about the Shahamanas kingdom, the rise of Chola Empire and their administration. So let me quickly introduce myself. Hi बच्चों, मेरा नाम अंकना है और मैं हूँ आपके expert for social sciences at Imbibe, and I hope that you guys are doing amazingly well. I come with an experience of 9 years in the field of education, wherein I've taught both online and offline to the students of CBSE and ICSE. I've done my studies in the field of humanities, and hence I specialize in English and social science. Now that was a quick इंट्रोडक्शन. नाउ लेट्स हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट वी हैव डन इन द सेशन. तो हमने समझा कि मेडिवल इंडिया में किंगडम्स जो थे वो एडमिनिस्टर किंग्स के द्वारा ही किए जाते थे, जो समानताज और लोकल एसोसिएशंस और चीफ वॉरियर्स इनके साथ थोड़ा सा पावर शेयर करते थे, बिकॉज टू रूल अ वास्ट एम्पायर वाज नॉट ईजी. दे नीडेड पीपल टू ट्रांसफर द पावर टू एंड शेयर द पावर विथ, राइट. सो रेवेन्यू सोर्स्ड फ्रॉम पेजेंट्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस थ्रू टैक्सेशन एंड फोर्स्ड लेबर वाज डन. तो हमने सबसे पहले सेशन में समझा था कि फ्यूडल सिस्टम है जो रन किया करता था, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं थी. एक्सचेंज में लैंड के सर्विसेज, कुछ रेंट्स, कुछ ड्यूज लिए जाते थे, और उसमें कई बार फोर्स्ड लेबर भी किया जाता था. प्लस रेवेन्यू का, टैक्सेशन का एक प्रॉपर सिस्टम था. और ये टैक्स कलेक्शन का काम एक्चुअली ज्यादातर हेरिडिटरी ही चलता था, जस्ट लाइक मोनार्की. इन्फ्लुएंशियल लोग एक बार आ जाते थे इस जॉब में क्योंकि इसमें अच्छे पैसे थे, रेप्यूटेड जॉब था, एंड दे वुड नॉट वांट टू गो. वो ज्यादातर अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने बच्चों को ही फिर जॉब्स दिलवाया करते थे. प्रशस्तीज इज समथिंग दैट द ब्राह्मणास, द लर्नेड प्रीस्ट्स, जो पढ़े लिखे प्रीस्ट थे, वो लिखा करते थे. प्रशस्तीज बेसिकली इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे जो ओपन में राजाओं के गुणगान करने के लिए, उनके वैलर के बारे में, ब्रेवरी के बारे में, विंस के बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए ब्राह्मण्स के द्वारा लिखा जाता था. और रिटर्न में उनको जो है रिवॉर्ड भी किया जाता था. कई बार उनको लैंड जो है वो ग्रांट किया जाता था, जिसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो कॉपर प्लेट्स पे लिख दी जाती थी, राइट फ्रॉम किस तरीके का लैंड है, कितना बड़ा पोर्शन है, एवरीथिंग.
कलनाज के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, एंड वी अंडरस्टैंड दैट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग राइवलरी दैट वाज गोइंग अमंग्स द डायनेस्टीज फॉर टेरिटोरियल कंट्रोल एंड टारगेटेड इन्वेजन फॉर विद स्ट्रैटेजिक ओवर स्ट्रैटेजिक रीजन्स, जो रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे. महमूद ऑफ गजनी एंड सुल्तान मोहम्मद गोरी के बारे में हम आज बात करेंगे. सो विल स्टार्ट विद 3 क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस आपके पुराने सेशन से हमने लिए हैं, कुछ रेलिवेंट इस सेशन के लिए भी हो सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू वरी इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर these. It's absolutely fine. You just have to come back after the session and check whether you're able to answer now or not. However, we have tried our best to have questions from the previous session so that it's of some relevance to you if you've attended the session before. Chalo. तो इसी बात में I'll go into hiding. As you know, I will let you concentrate on the question. And the first question is, earlier the Chauhans were also known as the Chahamanas. Is this statement true or is this statement false? Okay, guys, then we'll move on forward. The statement is true. Chauhans were also known as the Chahamanas earlier. That was another name that they were addressed with. Next question. The Dash was an assembly of merchants and belonged to localities where traders and merchants were in a dominant position. तो मंडलम्स है, नाडूस है, वालानादूस है या नागा राम्स. We'll also show you the hint. Here is your hint. And we'll come back in 3, 2, 1, and 0. Okay, so I'm not going to explain the solution as of now because that's something we will be discussing in today's session as well. And the Nagarams is the correct answer. That is what it was known as. Cholas Empire mein hum baat karenge iski. Now moving on. So guys, you are already familiar with how well the videos are designed. I've shown you sometimes, especially for these historic, events and history chapters, just like medieval India and all. When you watch it visually, it just becomes absolutely beautiful and very well understood, and visual learning stays for a very long period of time with us in our memory. So just make sure that you do watch them and you do check it out. The 3D video learnings, learning videos are just beautiful, completely mapped with your syllabus. So you wouldn't have to even be worried. small topics पे बड़े अच्छे 5 मिनट के, 4 मिनट के, 6 मिनट के छोटे वीडियोस है. उतनी देर में आपको पूरा टॉपिक बिल्कुल ऐसा लगेगा मूवी देखते देखते समझ आ गई है. And on top of that, you also have an option to just scan your books and figure out what are the keywords that you're getting stuck with. Pick those keywords and watch the relevant videos or other 3D models related to it, which will help you a lot in preparing your concepts with thorough and understanding in depth. And Imbibe is always here with you, offering you these beautiful learning videos. 70,000 से भी ज़्यादा videos आपको Imbibe के app पे मिल जाएंगे. You can just access it for your course
if anything outside your course you want to learn everything. Plus हमारी live classes चलती हैं, सारे teachers आपके लिए classes लेते हैं. So if you even have a doubt, you can get it resolved with the help of the Imbibe application. पेरेंट्स कई बार हमें चाहते हैं कि हमारे साथ लूप्ड इन रहे. So with the help of parent app we can even include them and create our own Achieve journey by doing a lot of practice, lot of tests. So just make sure that you check the application out. Now 3 kingdoms were fighting for a single region. What region are we talking about? और 3 kingdoms आखिर क्यों लड़ रहे थे इस region के लिए? कन्नौज नाम इस region का. आखिर इस region में ऐसी क्या बात थी? When the invaders were attacking the magnificent temples of India for wealth and treasure, the kingdoms in Indian subcontinent were very keen to take control of Kannauj. Now that's a very interesting thing to understand, right? जब बाकी गजनी, महमूद ऑफ गजनी या मोहम्मद गौरी ये घुस रहे हैं हमारे घर में, इन सारे पोर्शंस को अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे लोगों का ध्यान जो है वो कन्नौज पे है. 3 किंगडम का. नॉर्मली जब बाहर से इन्वेडर आता है तो आप उसके साथ या तो इकट्ठा या इंडिविजुअली लड़ने की, फाइट बैक करने की और उनको वापस भेजने की कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. यहाँ पे लोगों का सारा फोकस कन्नौज में है. तो आखिर कन्नौज में ऐसी क्या बात थी और ये बाहरी लोग क्यों आ रहे थे? आपको शायद यहाँ पे देख के समझ आ जाएगा. बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया है, इंडिया जो है प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी, मेडिवल इंडिया के पहले भी, मिडिवल इंडिया में भी बहुत बड़ी ट्रेड सेंटर थी. हमारे स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, व्हाट नॉट, वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग विद ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. ये पूरी दुनिया में फेमस थे और इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारा सोना और चांदी रिटर्न में बेसिकली करेंसी आता था. तो आप बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हो. इंडिया के एक बड़े बिजनेसमैन की तरह इमेजिन करो, जिनका बिजनेस बहुत अच्छा है, जिनके प्रोडक्ट्स बहुत फेमस है, बहुत डिमांड में. तो अगर वो सेल करेंगे, अगर वो ट्रेड करेंगे तो नेचुरली वो अमीर होंगे. तो इंडिया भी बहुत रिच था इस वक्त. टेम्पल्स में और अलग अलग मॉन्यूमेंट्स में हम देखेंगे तो विल फाइंड दैट देयर वर अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स. टेम्पल्स के आइडल्स पे बहुत ज्यादा स्टोर किए जाते थे या चढ़ाए जाते थे. तो ये सारे लोग यहाँ पे आ रहे थे लूट पाट मचाने, हमारे वेल्थ को लेकर जाने के लिए. इस वक्त जो इन्वेडर्स आ रहे थे उनका कोर आइडिया बहुत ज्यादा ये नहीं था कि इंडिया में ही सेटल होना है और रूल करना है इस जगह को, अनलाइक द मुगल्स अबाउट हुम विल रीड फर्दर अहेड. So Kalanas की बात करते हैं. He was based out, or it was an account. His account was based on various sources, including inscriptions, eyewitness accounts, and earlier histories. Kalhana critical of rulers, unlike typical prashastis that glorified them, and provided detailed insight into medieval Kashmir's political and social landscape. So here we have something new to talk about. अभी तक हम क्या देख रहे थे? अभी तक हम देख रहे थे प्रशस्तीज, हमने पढ़ा था पिछले सेशन में, ठीक है. तो प्रशस्तीज में हमने ये देखा कि इंस्क्रिप्शंस थे जिसमें सारी चीजों को ग्लोरीफाई करते थे सारे प्रीस्ट्स जो थे वो सारे ही लोग. लेकिन Kalhana, who was actually one of the people who has been author of few books, like I think I'm forgetting the name of the book. It's Raja Tarangini or something, like basically talks about the river of kings and all, and has written a very very detailed account on Kashmir काफी ज्यादा. वैसे ही वॉज अ ग्रेट पोएट, जो बहुत मतलब उस वक्त लंबी लंबी अच्छी बड़ी प्यारी की कविताएं लिखा करते थे. और उन कविताओं में उन्होंने कश्मीर में और कश्मीर की हिस्ट्री में और किंग्स के बारे में काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन दिया है अलग अलग सोर्सेज यूज़ करके. तो जैसे कि बाकी प्रीस्ट क्या क्या करते थे कि जो सोर्स है वो बेसिकली राजा ने बोला, राजा की बात है, राजा की बात माननी है, राजा की बड़ाई करनी है, ये कर देते थे. बट काल्हाना डिड नॉट डू एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ही वुड एक्चुअली लिसन एंड टॉक टू द पीपल, फिगर आउट एंड गेट टू नो वेदर सच में राजा ने अच्छा काम किया है कि नहीं, क्या सच में राजा बड़ाई के लायक है या नहीं. एंड देन ही वुड ऑल्सो समटाइम्स इवन क्रिटिसाइज देम. जरूरत पड़ती थी तो उनकी बुराई भी कि राजा में क्या कमी है, ये सारी चीज़ों को भी डिस्कस करते थे, जो कि प्रशस्तीज में ज़्यादातर नहीं देखा जाता था क्योंकि इनके सोर्सेज बहुत सारे थे. सिर्फ राजा के कहने पे एक इंस्क्रिप्शन नहीं लिख दिया था लैंड ग्रांट लेने के लिए या जस्ट टू बी इन द गुड list of good books of the king. So that is why these details that he has written is very very authentic.
talks about a lot of things, the goods and the bads, not just the goods, not just the praises, and gives a very very detailed understanding of what was happening in Kashmir. अब बात करते हैं फॉरेन इन्वेशंस की. अब देखो, अब तक जो भी लोग आ रहे हैं, राजपूत के की बात कर ले, सोलंकी की बात कर ले, चौहान्स की बात कर ले, मतलब हुएवर यू टॉक अबाउट, पल्लास की बात कर लेते हैं, राष्ट्रकूटास, ये सब लोकल लीडर्स थे. ये इंडियंस ही थे, लोकल ही थे, और इंडिया के लैंड पे रहते थे, हमारे कल्चर से ही बिलोंग करते थे. प्रॉब्ली एक डायनेस्टिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन अपनी पावर इन्होंने दिखा करके अपनी जगह बना ली थी. अब लेकिन क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द वेल्थ एंड एवरीथिंग एंड द स्टोरीज दैट वाज स्प्रेडिंग अराउंड अबाउट इंडिया, कई सारे पावरफुल रूलर्स अफगानिस्तान में, गजनी की जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इन सारे रीजन्स में बड़े फेमस हो गया था हमारा देश, इंडिया बहुत फेमस हो गया. एंड व्हेन पीपल गेट टू हियर अबाउट दैट देयर इज अ कंट्री व्हिच हैज सो मच टू ऑफर, they don't want to stop, they don't want to take a break, they want to go and explore it, they want to try rule it or control it, or if nothing else just take all the wealth, plunder it, सब कुछ उठा करके अपने लिए ले जाना है. तो अब क्या हो रहा है कि जब बड़े बड़े टेम्पल्स, अब क्योंकि बहुत सारे रूलर्स आए हैं अलग अलग जगह, सब अपने अपने जगह पे अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन करें. पिछले सेशन में हमने डिस्कस भी किया था, जैसे खजुराहोस की बात की थी हमने, लक्ष्मण टेम्पल की बात की थी हमने देखा था कि कैसे अलग अलग राष्ट्रकूटास कुछ कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, पल्लास कुछ कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, सब चालुक्यास अपना करा रहे हैं. इन्होंने जब कंस्ट्रक्शन कराया तो उस मंदिरों में बहुत खर्च किया. प्रेशियस टेम्पल्स, लाइक आइडल्स वर मेड अप ऑफ प्रेशियस metals, या फिर गोल्ड, या फिर डायमंड, एंड ऑल ऑफ दीज प्रेशियस स्टोन्स वर गिवन टू दोज आइडल्स इन फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंट्स. या टेम्पल में बहुत महंगी चीजें लगाई गई थी. तो इन सारी चीजों की चर्चा सुनकर के जो बाहर के राजा थे बड़े अट्रैक्ट होते थे, उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था, और इसी वजह से महमूद ऑफ गजनी भी पहुंच आते हैं इंडिया, वेयर ही डिसाइड्स टू रेड्स इन द सब कॉन्टिनेंट. एंड द आइडिया वाज वेरी वेरी सिंपल. मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो अब नए आपके लोग आ रहे थे, मतलब एट दिस वेरी पॉइंट जो हमारे पास इन्वेडर्स आ रहे थे, उनका इंटरेस्ट इस जगह को रूल करने में बिल्कुल नहीं था. उनका इंटरेस्ट वेल्थ में था, उनकी जो अटेंशन थी उसी चीज ने ग्रैब की थी. एंड ऑल दे वांटेड टू डू वाज प्लंडर द सिटीज. प्लंडर द सिटीज मतलब उनकी चाहत सिर्फ इतनी सी थी कि जितना भी खजाना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम लेकर के चले जाएं और हम अपने पास रखें, एंड वी यूज दोज एंड nothing else, like just keep it with ourselves and not let it get destroyed, etc., right? So one second you guys. So with that idea, महमूद गजनी also came, प्लंडर किया सारा वेल्थ, सारे वेल्दी टेम्पल से सारी चीजें ले गए. इनफैक्ट फेमस सोमनाथ टेम्पल आज भी लोग बहुत ज्यादा जाना चाहते हैं गुजरात में, वहां से भी बहुत सारी चीजें उठा ली थी उन्होंने. मल्टीपल रेड्स किए थे. रेड्स का मतलब क्या है? घूम घूम करके सारी चीजों को फिगर आउट करना, चेक करना, और जो चाहिए अपना उठाकर ले जाना, जैसे रेड होती है अभी भी, ठीक है. तो 25 सालों के बीच में, फ्रॉम 1000 to 1025, इन दिस एरा, इन दीज 25 years, ही रेडेड इंडिया मल्टीपल टाइम्स, यानी कि कई बार आए, सवार लिया, चले गए. और ज्यादातर क्या करते थे? वेल्दी टेम्पल्स को ही टारगेट किया करते थे ताकि वेल्थ अक्वायर हो जाए. और साथ ही साथ what he would also do is, after plundering the temples, destroying the temples, doing a lot of destruction, would try to forcefully convert a lot of people, or make, spread Islam in general. So he was also trying to now start converting people and have an Islamic dominance, and that's how kind of Islam started getting introduced to the Indian subcontinent, which otherwise was more exposed to Hinduism, Buddhism, and Jainism primarily. So after plundering everything, he used to develop Ghazni into a splendid capital city of Afghanistan. तो सारे वेल्थ को यहाँ से उठाकर ले गए और अफगानिस्तान को सजा दिया, गजनी को डेवलप कर दिया सारे वेल्थ से. जब लगता था पैसे की कमी है, इंडिया आओ, लूटो और चले जाओ. ये सिंपल फंडा चल रहा था. So one of the first invaders to enter India in medieval times was, so we have already read this, we have just read this to be precise, I'm sure you will be able to answer, Timur, Genghis Khan, Mahmud of Ghazni, or Muhammad Ghori.
So we just read about this person, and we know it was Mahmud of Ghazni who would come, plunder everything, take everything along with him, and go and actually use all of that money to develop the capital city of Afghanistan, which was your Ghazni. So his excursions, the travel that he used to do, were designed to simply invade and pillage the valuable Indian temples. खास और northern portion में ही he would plunder, he wouldn't enter towards the southern portion. उधर से ही सामान लिया और चले गए. इनकी मिलिट्री काफी स्ट्रांग थी, मोटिवेटेड थी डिजायर से कि इतना सारा वेल्थ जब हम प्लंडर करेंगे तो हमें भी काफी मिलेगा, विच इज वाई ही वाज एबल टू वेरी इजीली प्लंडर नंबर ऑफ टेम्पल्स, जैसे उनमें से एक सोमनाथ भी एग्जाम्पल है. अब बात करते हैं मोहम्मद गौरी की. मोहम्मद गौरी हमारे लिए नाम इसलिए बहुत ज्यादा अननोन नहीं है, लिटरेचर में भी हमने देखा है इस कहानी का मेंशन पृथ्वीराज चौहान के कॉन्टेक्स्ट में. इट वाज हिम हु एक्चुअली हिट हिम डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड लॉस्ट हिज आई साइट. एंड you'll also see movies and series being made on this. So चहामना रूलर, so अभी हमने देखा था कि चौहान्स को पहले चहामनास के नाम से भी जानते थे. So the चौहान रूलर और the चहामना रूलर पृथ्वीराज the third, he was the one who was ruling when Muhammad Ghori entered in 1191. ठीक है, 1191 ईयर में he entered and defeated him in battle. तो जब डिफीट हो गए तो चले गए, पहली बार तो हार गए, और काफी तगड़ी कंपटीशन दी थी चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने, उनके आर्मी ने, एंड द चौहान डायनेस्टी was not ready to let them invade and just do whatever they wanted to. But within 1 year, he prepared well again and then came back with the idea and a very clear understanding and strategy to defeat Prithviraj Chauhan once again. And he got successful and established as a result of that his empire. So Mahmud of Ghazni was not interested in establishing an empire. Muhammad Ghori kind of was. And so once he basically defeated the Chauhan dynasty, he took over that region, जो कि दिल्ली और अजमेर अभी present है. मतलब यानी कि राजस्थान का थोड़ा पोर्शन और दिल्ली का थोड़ा पोर्शन. और 1192 की बात है ये. इट मार्क द एंड ऑफ द चौहान रूल, द चौहान डायनेस्टी, विच इज योर चहामना रूल इन दिल्ली एंड अजमेर. सिग्निफिकेंट इन हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया बिकॉज इट चेंज्ड, बिकॉज पहली बार अब एक इस्लामिक रूलर आएगा, एक इस्लामिक डायनेस्टी बनेगी, एक नया कल्चर शुरू होगा, एंड इट विल अफेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. Now we have understood that a lot of invasions were happening. People did what they wanted to do. However, we have also seen that there were different regions who were just interested within what was happening in their kingdom. But somehow these people are not stopping these foreign invaders, but will fight for one place, right? Now this is this is the time where they're trying to control other areas, not the areas where foreigners are invading. That did not really bother them. And इनमें से ही एक जो एरिया वो चाहते थे हमें मिल जाए, एक प्राइज्ड पोजेशन, एक कीमती जगह थी कन्नौज, जो कि गंगा वैली के किनारे थी. ठीक है, कई सालों से यहाँ पे रूलर्स जो हैं आपके, चाहे वो गुर्जारा प्रतिहारास हो, राष्ट्रकूटास हो या पालास हो, वो यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे बहुत बहुत लंबे समय से. तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम. सो लेट्स सी. रूलर्स डेमोन्स्ट्रेटेड पावर बाय टारगेटिंग टेम्पल्स, जैसे कि हमने महमूद ऑफ गजनी का देखा. चहामनास, जिन्हें लेटर ऑन चौहान्स के नाम से जाना गया, वो भी एक्सपैंड करते गए अपना कंट्रोल. जहाँ पे चालुक्यास और गोहादवाला से उनको पुशबैक मिला. But we know that Prithviraj, when first defeated Muhammad Ghori, it became very powerful, but within a year lost to Muhammad Ghori and also lost the empire. And subsequent battles में he couldn't keep up, and that was the end of your Chauhan rule or the Chauhan dynasty. Now tripartite struggle for कन्नौज. ये कन्नौज है, रिवर गंगा के किनारे. ठीक है, अब इसके आसपास के लिए ये इधर से पालास, इधर से गुर्जर प्रतिहारास और यहाँ से राष्ट्रकूटास, ये तीनों आएंगे कन्नौज को अपने कब्जे में लेने के लिए. क्यों? तो ये बहुत लंबा कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत समय से चला आ रहा था. इसको एक स्पेशल टर्म भी दिया गया है जो आप याद रखेंगे. द टर्म इज tripartite struggle. ठीक है. Now control over Kannauj, it must have
meant something very very special. That is why people were fighting constantly to get a hold of this, right? तो आखिर ऐसी क्या बात थी कि ये सारे डायनेस्टीज यहीं पे टिक जाना चाहते थे, एंड दे वर नॉट रेडी टू गिव अप? इसका मतलब ये होता कन्नौज उस वक्त काफी वेल्दी जगह थी। ऐसा होता है ना कि एक बड़ी सिटी है, उस सिटी को कंट्रोल में ले लिया तो तुम्हारी किंगडम अपने आप काफी ऊपर चली जाएगी, प्लस इट विल कीप ऑन ब्रिंगिंग मनी फॉर यू बिकॉज इट्स फर्टाइल लैंड एंड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। सो पावर और वेल्थ का एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक स्टेट था कन्नौज। कन्नौज स्टूड फॉर दिस पावर एंड वेल्थ दैट इट ऑल हैड, ओके। सॉरी, रूलर्स इस वक्त क्या करना चाहते थे? अपनी पावर जताना चाहते थे और अपने रिसोर्सेज दिखाना चाहते थे, इसलिए इतने टेम्पल्स बनाना और ये सारी चीजें करना भी कर रहे थे, राइट? ऑल ऑफ दिस वाज आल्सो गोइंग ऑन. So that was another reason why everyone really had all of their focus on Kannauj, which was going to be a symbol of power and, you know, control for most of the countries, for most of the kingdoms, and this would have helped them establish their dominance. अपने dominance को, अपने वर्चस्व को, value को, dominance को बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा helpful रहती इन सारे kingdoms के लिए. तो ये सब supreme बनना चाहते थे, ये सब superior बनना चाहते थे, एक दूसरे से better बनना चाहते थे, और इस चक्कर में लड़ाई चल रही थी और कन्नौज पे इस वजह से कंट्रोल लेना था इनको, जो कि वहां के पॉलिटिकल लैंडस्केप को काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक है, या लैंडस्केप को चेंज कर रही थी, कह सकते हैं. अब हमें बात करनी है कि महमूद गजनी ने क्या किया. बहुत ज्यादा बच्चे प्लंडरिंग की, ठीक है. मोहम्मद गौरी, बिकॉज ही वाज रूलिंग, जब भी कोई रूलर होता है वो जनरली अपने किंगडम को ग्रो करता है, डेवलप करता है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करता है. बट महमूद ऑफ गजनी हैड नो सच इंटरेस्ट. ही वाज वेरी क्लियर दैट ही वांट्स टू रूल गजनी एंड ही डजंट वांट टू बी एनीवेयर एल्स. ही डजंट वांट टू सेटल डाउन और फॉर दैट मैटर इवन इंक्लूड दिस पोर्शन इनटू हिज एम्पायर और किंगडम. तो उन्होंने लगभग इंडियन सब कॉन्टिनेंट को 17 बार रेड किया, विच मीन्स इन दोस 25 years ही ऑलमोस्ट केम 17 times with his army to raid and also with religious motives to establish Islamic dominance. इस्लाम को डोमिनेटिंग रिलीजन बनाना, लोगों में स्प्रेड करना और रेड करके सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को, महंगी चीज़ों को ले जाना वापस आपके गजनी. इस आइडिया के साथ he had come 17 times in a span of 25 years between 1000 to 1025 AD. सारे सोमनाथ जैसे बड़े बड़े टेम्पल्स, क्योंकि वहां पे बहुत सोना, चांदी, बहुत प्रेशियस मेटल्स, बहुत कुछ मिलते थे, बड़े बड़े घरों को और मॉन्यूमेंट्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, इन सब जगहों को लूटा, प्लंडर किया करते थे. लूटेड वास्ट रिचेस लाइक अमाउंट ऑफ ग्रेट ऑर्नामेंट्स एंड वेल्थ एंड यू नो प्रेशियस थिंग्स, एंड वो सब ले जाकर के गजनी में लगा दिया और भाई क्या आलिशान कैपिटल बनाया. इसकी वजह से हमारे कल्चर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, ये भी हमें समझ आ गया है. अब बात करते हैं किताब उल हिंद और अल बिरूनी की. अल बिरूनी बच्चे अगेन अ ट्रैवलर, अकाउंट राइटर ऑफ द टाइम. ही रोट किताब उल हिंद, ठीक है, जो कि मेडिवल इंडिया में हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारी डिटेल्स, इनसाइट्स, बहुत सारी चीज़ें जो चल रही थी उसके बारे में हमें आइडिया देती है और बताती है. ही स्पोक वेरी मच इन डिटेल अबाउट इंडिया का कल्चर कैसा था, क्या रिलीजन प्रैक्टिस करते थे लोग, साइंस में क्या फॉलो करते थे, क्या डेवलपमेंट्स हो रही थी, बिकॉज वी नो दैट लॉट ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियंस लाइक आर्यभट्टा एंड साइंटिस्ट्स हैव कम फ्रॉम इंडिया एंड वी हैव डन सम ग्रेट, वी हैव discussed some great ideas and done some great discoveries. So he would write a lot about what were the different developments that was happening, how the world was growing, how it was developing, and his work remains a very important source for us because medieval India के बारे में बहुत डिटेल में हमें क्या डेवलपमेंट है, क्या कल्चर है, क्या आर्ट है, हर एक चीज़ की बहुत डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलती है. ऑफर्स क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें पता है कि हम बहुत डाइवर्स हैं, हमारे कंट्री में बहुत वेरिएशन है. ये इस वजह से भी है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग किंगडम्स थे, उनके अलग कल्चर थे, अलग बैकग्राउंड था, तो वहां से कल्चर डेवलप होता गया. प्लस जो अलग अलग एरियाज रहे, पहाड़ों पे अलग कल्चर, रेगिस्तान में अलग कल्चर, प्लेन्स में अलग कल्चर, तो ये सब मिल मिलाकर के जो नए नए कल्चर की फॉर्मेशन हुई, सबके अपने परसेप्शंस थे कहीं ना कहीं कल्चर के, आर्ट के, हर एक चीज के. बट वॉट अल बिरूनी हैज डन इज ही हैज हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड थ्रू वेरियस कल्चर्स ऑफ हाउ मेडिवल इंडिया एज अ मिक्सचर
looked alike. Okay, so here comes our next question. The question is, Prithvi Raj III defeated Sultan Muhammad Ghori in 1191 in the war that they had. Is this statement true or is this statement false? So 1191 में when Prithvi Raj and Muhammad Ghori had a war, a battle, it actually was clearly won by Prithvi Raj Chauhan, and that's what made Muhammad Ghori go back. But he came back again in 1992. That's when he defeated Prithvi Raj Chauhan. सो चाहमनास किंगडम की अगर बात करें, जो बेसिकली चौहान्स थे, इनके बारे में हमने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा है। ये दिल्ली और अजमेर के रीजन में रूल करते थे और इन्होंने कोशिश की थी चालुक्यास के गुजरात वाले सेक्शन में और गहादवलास के उत्तर प्रदेश के सेक्शन में एक्सपैंड करें। कहीं सक्सेसफुली थोड़ा सा कर पाए, कहीं नहीं कर पाए, कहीं दे वर पुश्ड बैक. The battles of Prithviraj Chauhan the third, right, with Sultan Muhammad, ये काफी famous है, historic, one of the most historic events है, because if he would have defeated him, Islamic rule wouldn't have immediately come and a new culture wouldn't have immediately got introduced as of now 1191 में. इसीलिए ये हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा जंप है इंडिया के कल्चर में, हिस्ट्री में बहुत वेरिएशन लाते हैं, एक ट्विस्ट ला देता है, इसलिए ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और चौहान्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल रोल प्ले करते हैं इंडिया के पॉलिटिक्स में. ठीक है, now that was it about the Chauhans, the different foreign invaders like Mahmud of Ghazni and Muhammad Ghori. Now we will understand what's happening in the south में क्या चल रहा है. विजाल्या फ्रॉम उरायूर, ठीक है, कावेरी डेल्टा को कैप्चर करते हैं फ्रॉम मुतारयार इन 9th century, विच इज योर 800 समथिंग. सो कावेरी कहाँ से कहाँ बहती है बच्चे? आपका कर्नाटका, थोड़ा सा केरला, मेजरली तमिलनाडु, इस वाले पोर्शन से, वहां के जो डेल्टा है वहां से ही स्टार्टेड कैप्चरिंग. विजालिया की बात हो रही है. और थंजावुर आपने नाम सुना होगा, उसको स्टैब्लिश किया एक बड़े सिटी की तरह, और वहां से चोला डायनेस्टी बिगिन हो जाती है रूल करना और वो अपनी टेरिटरी को स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं. इनके सक्सेसर्स का नाम हमने सुना हुआ है पांड्यन और पालवा टेरिटरीज के थ्रू. Raja 1 and Rajendra the 1 expanded Chola influence through conquests all over around. पहले एक छोटी सी जगह थंजावुर से शुरू किया और फिर बड़ा बड़ा करते गए. पुण्य सिल्वन मूवी एक आई है जो इन सारे राष्ट्रकूटास, चोलास एंड पांड्यास के बारे में बात करती है. आई थिंक यू शुड डेफिनेटली वॉच इट वंस यू हैव रेड अ लिटिल बिट अबाउट दिस हिस्ट्री. दैट मूवी विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट द इक्वेशन ऑफ द डिफरेंट डायनेस्टीज, हाउ दे वर प्लेस्ड, हाउ द मूवमेंट्स वर हैपनिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, अब चोला एम्पायर के इस राजा ने जिसने एस्टैब्लिश किया उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. इन्होंने कई सारे टेम्पल्स बनाए. तो बच्चे टेम्पल्स नॉर्थ में भी बन रहे थे, साउथ में भी बन रहे थे. नेचुरली दीज वर ऑल्सो वन वे ऑफ काइंड ऑफ एस्टैब्लिशिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द वेल्थ ऑफ द किंगडम. द बिगर द टेम्पल, द प्रेशियस, the more precious the metals and the ornaments that are being used would symbolize the wealth and the strength of the kingdom. So north में प्रॉब्लम ये हो गई कि फॉरेन इन्वेडर्स आ गए थे, लेकिन साउथ तक वो नहीं पहुंच रहे थे. they wouldn't enter, they would just do their thing in गुजरात and राजस्थान, दिल्ली विल्ली में अपना लूटपाट मचाकर चले जाते थे. तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे भी टेम्पल्स बिल्ड होना शुरू हो जाती हैं कहीं ना कहीं अपने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, पावर के, वेल्थ के. और आपकी ये जो निशुंभ बासुदिनी टेम्पल है, दैट वाज सॉरी गॉडेस है, उनके लिए टेम्पल एक बड़ा सा बनाया. उसके साथ साथ कॉन्क्वेस्ट जो थे वो चोला एम्पायर के राइज का फाउंडेशन थे. यानी कि इट वाज नॉट जस्ट द ट्रेड एंड ऑल दैट दे वर डूइंग दैट हेल्प देम बी वेरी वेल्दी. इन्होंने बहुत सारे एरियाज को अपने कैप्चर में लेकर के धीरे धीरे किंगडम को ग्रो भी किया था और अपने इन्फ्लुएंस को सदर इंडिया में बढ़ाते चले गए थे और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते चले गए थे. ठीक है, अब ये विजयला जो हमारे राजा हैं, उनके सक्सेसर्स कौन बनेंगे? सो चोला सक्सेसर्स एक्सपैंडेड कंट्रोल ओवर द पांड्यन एंड द पल्लवा टेरिटरीज. पल्लवा टेरिटरीज आपको याद है, जो आपका मगध वाले पोर्शन में आ रहा था.
sorry, Gopalas tha, my bad. Pallavas territories mein they were moving in, right? Now Raja 1, who was the next successor, उन्होंने मार्क किया एक बड़ा टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. सो ही नॉट जस्ट कॉन्कर्ड मोर प्लेसेस, मेड द एम्पायर स्ट्रॉन्गर एंड बिगर, लेकिन साथ ही साथ अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि एक बड़े एम्पायर को कंट्रोल में रखने के लिए एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है. अगर आपके लोग, आपके ऑफिशियल सही तरीके से काम कर रहे हैं, मनी फ्लो, टैक्सेशन, डेवलपमेंट सब अच्छा होता जाएगा और किंगडम अपने आप ग्रो करेगी, लोगों का भी सपोर्ट रहेगा. He also invaded Ganga Valley, Sri Lanka and South East Asia. तो आप सोच सकते हो कितने रैंडम जगहों पे एक्सपैंड करके स्प्रेड करने की कोशिश करी थी. एंड इट फाइनली रीच्ड द पीक अंडर द सक्सेसिव रूलर्स. तो ये राजा जो थे और उनके आगे जो भी सक्सेसर्स आए थे, राजेंद्र जैसे हो गए, इनके अंडर इतनी एक्सपेंशन, इतनी वेल्थ देखी इस किंगडम में कि वो अपने पीक पे, जेनिथ पे, एट द टॉप लेवल दैट इट कुड बी, वहां पहुंच गई थी अंडर दीज रूलर्स. So on that note, let's quickly answer the question, which ruler was it who captured, who tried to capture basically and went to Sri Lanka in the 11th century current era? गोपाला, मिहिर भोजा, मोहम्मद गोरी और राजेंद्र चोला. He was also known as Gangai Konda. Okay guys, and moving on, it was Rajendra Chola, Raja and Rajendra Chola. इन लोगों ने बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट्स किए थे. So राजा की बात करते हैं. He was the one who ascended power in 985, जो फर्दर चोला डायनेस्टी को और आगे ले जाते हैं, कॉन्क्वेस्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करते हैं. He built temples in Thanjavur and again in the place of Gangaikonda, Cholapuram, and that's why he was also known as Gangaikonda. Reorganized the whole administration और naval supremacy लगा दी. यानी कि नेवल मतलब जो आपकी मिलिट्री आर्मी आपके लैंड पे हमेशा रहती है, एयर उस वक्त पॉसिबल नहीं था, बट पानी में ज्यादा एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं था, ज्यादा लोग नहीं रहते थे, बट ही मेड श्योर आफ्टर राजा द फर्स्ट, व्हेन ही सॉ ऑल द कॉन्क्वेस्ट एंड एवरीथिंग, ही अंडरस्टूड द पावर ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम एंड ही फिगर्ड दैट a lot of invasions or khatra jo hota hai, the danger can come through the water as well, and that's where he need to establish and protect his entire empire from all the sides. So he continued the expansionist policy that was actually started by Raja the First and developed the navy maritime expeditions. He also extended the influence across Indian Ocean region. जैसे मैंने आपको बताया, श्रीलंका में चले गए, साउथ ईस्ट एशिया में चले गए, अलग अलग जगह पे अपने एक्सपेंशन को, अपने किंगडम को स्प्रेड करने की कोशिश करी. Now talking about the Chola temples renowned for architectural, so art and religion की अगर बात करें चोलास में, बच्चे इन जनरल इस वक्त मेडिवल इंडिया की अगर बात करते हैं हम, आर्किटेक्चर और कल्चर बहुत ज़्यादा पीक पे था. पीपल वर डूइंग अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स, दे वर कंप्लीटली एक्सप्लोरिंग द कल्चर एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द कल्चर. और सेम चीज़ हमें नॉर्थ में भी दिखती है, सेम चीज़ हमें साउथ इंडिया में भी दिखती है. नॉर्थ में इन्वेडर्स ने आकर बहुत ज़्यादा प्लंडरिंग कर दी, साउथ में हालांकि काफ़ी प्रोटेक्टेड रह गया, और ये सेम इफेक्ट हमें
हमें चोलास के डायनेस्टी में भी नजर आता है, जो अपने बेहतरीन आर्किटेक्चर और स्कल्पटिंग जो होती थी, डिफरेंट डिफरेंट आइडल्स या स्टैचूज जो बनते थे, उसके लिए जाना जाता है। हिस्टोरिकली हम देख सकते हैं ऐसे टेम्पल्स जो हैं वो सर्व करते थे रिलीजन के, इकोनॉमी के, सोशल के और कल्चरल लाइफ के, इन सारी चीजों के सेंटर की तरह। रिलीजन तो डेफिनेटली मेक्स सेंस, बट साथ में बहुत ज्यादा आपका सोसाइटी में लोगों का उठना बैठना, कल्चरल लाइफ कैसी है, इन सारी चीज़ों का भी वो सेंटर था, वहाँ से बहुत कुछ प्रोपगेट होता था। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखो ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स वगैरह है, दीज वर स्पेशली डिजाइन फॉर किंग्स एंड क्वींस, गॉड्स एंड गॉडेसेस, डीटीज जो होती थी। एक डिस्टिंक्ट चोला क्राफ्ट, एक अलग तरह का क्राफ्ट है जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे स्पेशली। और ब्रॉन्ज स्टैचूज बनाए जाते थे बड़े रिफाइननेस के साथ। दीज वर एक्सपेंसिव, ये बाकी जगह पे उतना नहीं है। दिस काइंड ऑफ इनेट टू चोला डायनेस्टी, वो उनकी एक यूएसपी थी, एक हाईलाइट था। टेम्पल्स जो हैं एंडोर्ड विथ लैंड सपोर्टिंग वेरियस आर्टिसंस एंड प्रोफेशनल्स। तो टेम्पल्स जब हम कह रहे हैं कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी एक अच्छी जगह थी, वो इसलिए कि अलग अलग तरह के आर्टिस्ट जहाँ पे भी टेम्पल्स बड़े थे, जिनके पास पॉसिबिलिटी थी, वो क्या करते थे, बड़े बड़े मतलब कई सारे आर्टिस्ट को मौका देते थे स्कल्पटिंग करने का, अपनी आर्टिस्ट्री दिखाने का। और क्योंकि वो टेम्पल से निकल रही हैं तो दे हैड अ बेटर नेटवर्क, इट वाज लाइक अ प्लेस व्हिच वुड पुश देम फर्दर अहेड एंड मेक देयर लाइव्स इजियर एंड बेटर। तो तंजावुर या गंगाई कोंडा चोलापुरम की बात करें, आप देख सकते हो कैसे बेहतरीन तरीके से काशीगारी करके, विच मीन्स कार्विंग करके टेम्पल्स को बनाया गया है। इट्स ब्यूटिफुली मेड एंड इट शोज द हार्ड वर्क, द एफर्ट्स एंड द मनी दैट वुड हैव गॉन इन एट दैट टाइम टू बिल्ड दीज ग्रैंड टेम्पल्स। इट वॉज लाइक द सेंटर ऑफ वेरियस सेटलमेंट्स। तो टेम्पल बन गया तो उसके आसपास ही लोग रहते थे, वो सेंटर था क्राफ्ट्स का, आर्टिस्ट्स का, स्कल्प्टर्स का, जो यहाँ आते थे, काम सीखते थे, अपना काम दिखाते थे, अपनी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करते थे, एंड दैट्स हाउ इट स्प्रेड थ्रू द एंटायर किंगडम. With this next question, the sculptures are mostly figures of kings, queens, gods, and dash goddesses or priests. I think you don't even need a hint for this. This is probably the easiest question that one can make. एंड द करेक्ट आंसर वुड बी गॉडेसेस, राइट? गॉडेसेस जो हैं उनके स्कल्पचर्स बनाए जाते थे. अब अगर हम बात करें जो एग्रीकल्चरली डेवलपमेंट चल रहा था, तो बच्चे रेवेन्यू सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन था, सोल्जर्स थे, ऐसे करके कई सारे जॉब्स थे. बट मेजर जॉब जो आपके देशवासियों के लिए, किंगडम्स वालों के लिए अगर आप देखोगे तो ज्यादातर एग्रीकल्चर ही था. और चोला डायनेस्टी में कैसे चल रहा था ये, तो जो डेवलपमेंट थी एग्रीकल्चर का वो बहुत ज्यादा एडिशन करती थी इन द अचीवमेंट ऑफ चोलास, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ट्रेड का मेजर हिस्सा एग्रीकल्चर हुआ करता था. एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में स्पाइसेस हो जाते हैं, कॉटन हो जाता है, या फिर आपका इन जनरल खाना पीना, ये सारी चीजों में ही ट्रेडिंग हुआ करती थी. एंड द मोर प्रोडक्शन एंड द बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन अ किंगडम वुड हैव, द बेटर एंड द मोर दे विल बी एबल टू ट्रेड एंड अर्न मनी. और जब वो मनी आएगा तो इन जनरल डेवलपमेंट होगी, या खाने का अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रजा को खाना मिलेगा, किंगडम विल गेट ऑल द फूड, सो इट विल डेवलप, इट विल ग्रो, इट विल इवॉल्व. हालांकि एग्रीकल्चर जो है इट डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु. इट वाज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. तो शुरुआत से ही इनको ये नहीं लगा कि कल्टिवेशन करना चाहिए, या इन्होंने शुरू नहीं कर दिया था. ज्यादातर पहले जो है शुरुआत कहाँ से हुई थी, इट स्टार्टेड फ्रॉम तमिलनाडु यू कुड से, बट धीरे धीरे करके इन सारे एरियाज में भी स्प्रेड हो गई. और यहाँ पे भी बड़े बड़े स्केल में बहुत बहुत ज्यादा प्रोडक्शन के साथ जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाने लग गया. फॉरेस्ट जो है उनको क्लियर कर करके लैंड खाली किया जा रहा था ताकि वो कल्टिवेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके. साथ ही साथ डैम्स, जैसे अभी जितने ग्रैंड डैम्स है ऐसे नहीं, बट स्मॉलर वर्जन्स ऑफ डैम्स, एम्बैंकमेंट्स, उनका कंस्ट्रक्शन किया गया ताकि नदियों के बाहर पानी जाकर के गांव में फ्लड ना कॉज करे. कनाल्स बनाए गए, टनल्स बनाए गए कि पानी का सप्लाई उन जगहों पे भी हो सके जहां पानी की कमी. आप सोच रहे हो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है. चोलास उस वक्त अपने एग्रीकल्चरल लैंड्स के लिए कर रहे थे, तो नेचुरली दे वर क्वाइट एडवांस, दे वर क्वाइट टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड, एंड दे वर डूइंग वेरी मच वेल इन द प्रोडक्शन ऑफ crops as well.
कई साल में हम ये भी देखते हैं कि इन मेनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन 1 ईयर। तो अब आज के डेट में सॉइल बेटर करने के लिए, कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए ये देखा जाता है कि फार्मर्स मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम अपनाते हैं कि सीजन्स के हिसाब से अलग अलग क्रॉप सेम ज़मीन पे ग्रो करते हैं, ताकि ज़मीन की फर्टिलिटी को भी हैम्पर ना हो, सेम न्यूट्रिशन एक क्रॉप बार बार कंज्यूम ना करें, और रोटेशन होता रहे, प्लस प्रोडक्शन हर सीजन में, और उनको ज़्यादा पैसे बने। ये तब उस वक्त इन द एट्थ सेंचुरी, 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी के वक्त पे चोलास उस वक्त प्रैक्टिस कर रहे थे, और कई तरह के मेथड्स इस्तेमाल करते थे, जैसे कि वेल्स, कुआं बनाना, प्लेस करना ह्यूज टैंक्स, किस चीज के लिए, इरिगेशन के लिए, विच मीन्स दैट दे वर ऑल्सो वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड टू एड्रेस दैट सिचुएशन। कई सारे नए रूलर्स थे एज वेल एज पीपल living in the villages were actively involved in these activities. Everyone used to kind of take participation. एडमिनिस्ट्रेशन की बात रही तो हमने देखा राजा राजा और राजेंद्र द फर्स्ट दोनों ने ही बहुत स्ट्रांगली रीऑर्गेनाइज किया था एडमिनिस्ट्रेशन को, विच वाज ऑलरेडी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्गर अर्लियर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बट उसको और ज्यादा रीऑर्गेनाइज करके मच बेटर बनाकर इतना स्ट्रांग खड़ा किया गया कि इतने बड़े किंगडम के सारे प्रॉब्लम्स को, सारी चीजों को वो आराम से हैंडल कर सके। सो द सेटलमेंट ऑफ पेजेंट्स grew prosperous with the spread of irrigation and irrigation culture। अब क्योंकि हर जगह पानी पहुंचा दिया है, तो लोगों के लिए इरिगेशन करना, किसी भी वक्त करना, बारिश पे डिपेंडेंट सिर्फ नहीं रहना, कहीं से और भी सोर्स ऑफ पानी का होना बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर रहा था, बहुत प्रोडक्शन कर रहा था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच काफ़ी वेल्थ ला रहा था, जो कि चोला किंगडम के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा था। Group of such villages formed larger units called Nadu. This is what we did, right? तो ऐसे कई सारे villages थे जहाँ पे peasants जो है ग्रुप्स बनाते थे, prosperous peasants थे, एग्रीकल्चर करते थे, साथ में मिलकर काम करते थे। इनका जो ग्रुप था उसे नाडू कहते थे। And they performed several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes। तो अलग अलग गांव में ऐसे ग्रुप्स बन गए थे, कुछ रिच peasants वगैरह के, जो आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते थे, जो आज के डेट में लोकल गवर्नमेंट सरपंच करते हैं कहीं ना कहीं। तो किसी के साथ कोई अन्याय, अनजस्टिस हो गया, इनजस्टिस हो गया है, दिस समबडी हु हैज अ प्रॉब्लम, हु हैज अ कॉन्फ्लिक्ट, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इनका काम था। तो दे यूज्ड टू बेसिकली do justice to them, listen to their problems, resolve their problems, and also collect taxes along. Now, rich peasants of the Velala caste controlled over the affairs of the Nadu। ठीक है, तो जो बड़े peasants थे, और कास्ट डिफाइन था, वेलाला कास्ट के थे, जो ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे नाडूज, अब देखो वो भी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाकर काम नहीं कर सकते, तो उनका जो भी काम था, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, कई सारे जो आपके एरेंड्स थे, वो उसका टेक केयर करने का काम जो है वो रिच पेजेंट्स ऑफ वेलाला कास्ट का हुआ करता था, ऑफ कोर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। मेन राजा की जो गवर्नमेंट है उनके सुपरविजन में, वो इंडिपेंडेंटली फ्री होकर अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम नहीं था। कुछ और रिच लैंड ओनर्स थे जिनको स्पेशल टाइटल्स दिया जाता था, रिवॉर्ड के फॉर्म में, रिकग्निशन के फॉर्म में। ये टाइटल्स थे जैसे कि वेंडा वेलन, अ वेलन और पेजेंट सर्विंग 3 किंग्स, या फिर अरायार, विच बेसिकली मेंट चीफ, एंड दे वर ऑल्सो इंट्रस्टेड विद इंपॉर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। तो सिर्फ इन लैंड ओनर्स को एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन के कारण ही ये नहीं किया जाता था, साथ ही साथ एक रिवॉर्ड की तरह टाइटल के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक तरह से समझ लो गवर्नमेंट में जॉब भी दे दिया जाता था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटर करो। And that brings us to the next question. Some rich kings were honored with the titles like Vendavallan, a Vellan or a peasant serving 3 kings, or Arayar, chief, etc. And they were also entrusted with important offices of state at the center. Is this statement true? Is this statement false? So this statement, guys, is actually absolutely
sorry, false. Some rich kings were honored. So why is this false? It's not true because some rich peasants were honored, not the kings. Even I misread it, so you be careful. मैंने kings पे नहीं land owners पे मतलब presume कर लिया और बाकी का statement पढ़ के मान लिया. वैसे true और false से हमें careful रहना है ताकि हमसे गड़बड़ी ना हो जाए ना. जैसे जैसे ब्राह्मणास रिसीव करते गए लैंड ग्रांट्स, प्रशस्तीज वगैरह में हमने देखा भी है, या फिर ब्राह्मदया जिसे कहते हैं, कई सारे ब्राह्मण सेटलमेंट्स जो हैं वो कावेरी वैली के अराउंड इमर्ज करते हैं क्योंकि अब जमीन उनको दे दी गई है तो उनकी फैमिलीज वो सब वहां पे धीरे धीरे ग्रो करने लग गए, रहने लग गए, कंस्ट्रक्शन किया, एग्रीकल्चर किया, सब कुछ किया. हर एक ब्राह्मदया जो है was looked after by an assembly or sabha of prominent brahmana land owners which worked efficiently. तो ये जो अलग अलग सेटलमेंट्स आ गए उनमें भी अब धीरे धीरे आपको एडमिनिस्ट्रेशन समझना है, आपको ये देखना है कहाँ कहाँ पे हेड्स बनते जा रहे हैं. तो अब कावेरी के पास जो लैंड ग्रांट्स लेकर के लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं वो ब्राह्मदयास कहला रहे हैं. और हर एक ब्राह्मदया में क्या होता था, हर एक जगह पे जहां पे लैंड की ग्रांट्स दी जानी थी उनमें एक असेंबली बनती थी, यानी कि कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स आते थे, सभा बनाते थे, मीटिंग करते थे, एक अपना ग्रुप बनाते थे ब्राह्मण लैंड ओनर्स का ही, और वहां पे रूल्स रेगुलेशंस, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, इसके हिसाब से बड़े एफिशिएंटली सारी गवर्निंग किया करते थे. The decisions were recorded in detail in inscriptions on stone walls of temples. तो जो भी मीटिंग में कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, जो भी डिस्कशन हो रहा है वो टेम्पल्स में सारा रिकॉर्ड हम पा सकते हैं. आज भी इट वाज रिटन, अकाउंटेड फॉर. साथ ही साथ ट्रेडर्स, क्योंकि ट्रेडिंग भी चल रही थी, मर्चेंट्स भी आ गए थे और अब शिप्स, वो सी रूट भी हमारे लिए ओपन था तो उधर से भी ट्रेडिंग होती थी. मल्टीपल तरीके से हम ट्रेड कर रहे थे अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इन द नेशन. तो ट्रेडर्स भी अब अपना ग्रुप एसोसिएशन बनाते थे जिनका नाम नागाराम्स था. तो नाडू आपके विलेजेस के लैंड ओनर्स वालों की बात हो गई, और नागाराम्स कौन है? ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन जो अपना एसोसिएशन बना रहे हैं, वो जो कभी कभी कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते भी थे और कई बार नहीं भी करते थे, उनका काम ये नहीं होता था. जैसे कि उत्तरामेरूर जो कि आपका चिंगलीपुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में एक इंस्क्रिप्शन है, एक स्टोन पे लिखी हुई कहानी, बातें हैं, वो हमें बताती हैं कि कैसे इनकी ब्राह्मदयास की सभा या नागाराम्स की सभा जो असेंबली थी, हाउ डिड दे यूज टू फंक्शन, व्हाट वर द डिसीजंस दैट दे यूज टू मेक, हाउ द कमिटी यूज टू वर्क एंड लुक आफ्टर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इरिगेशंस एंड टेम्पल्स एटसेट्रा. ऑल्सो कैसे काम बांटा जाता था, लॉटरी सिस्टम लगाई जाती थी, अपने मर्जी से बांट नहीं दिया जाता था, लोगों में प्रॉपर लॉटरी सिस्टम लगाई जाती थी कि किसका नंबर आएगा, जिसका नाम आया उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई टू कीप इट मोर फेयर एंड simple. So now we have to tell the associations of traders were known as dash, also occasionally performed in administrative functions in towns. So this is the same question, right? So I'm sure you guys will be able to answer it this time. And sorry, Nagarams was the name of these associations that were formed. So with this, we have finished the discussion today. So let's quickly summarize. Warfare जो है मेडिवल इंडिया में सेंटर बन जाता है, कई सारे फॉरेन इन्वेडर्स भी आते हैं, बट जो इंटरनल लोग थे वो कन्नौज के ऊपर हक जमाने के लिए, क्योंकि वो सिंबल था पावर और वेल्थ का, 3 राष्ट्र आपस में लड़ रहे थे, राष्ट्रकूटास, पल्लास एंड गुर्जारा प्रतिहारास. Mahmud of Ghazni targeted multiple raids, like 17 times in the span of 25 years, and he would just come, plunder, and impact the entire history, also try to establish Islamic dominance. The Chauhan dynasty or the Chahamanas expanded, but of course faced resistance, but then finally was beaten by
Muhammad Ghori, who first got defeated in 1191 by Prithviraj Chauhan, but the second time when he came back after a year, he won. Chola Empire's rise began with Vijalaya's conquests, जो कि further expand होती है उनके successors, बेटे और पोते के द्वारा. Raja the First and Rajendra. Chola temples showcased various architectural excellence जो serve करती थी cultural economic hubs को. Agricultural advancements भी देखे हमने Chola Empire में, which was supported by prosperity through irrigation and land management. चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसेंट्रलाइज कर दी गई थी विथ लोकल काउंसिल्स मैनेजिंग अफेयर्स अंडर सेंट्रल ओवरसाइट, जैसे कि नागराज और नाडूज. दीज पीपल यूज टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है. नाउ guys, just make sure that you are truly exploring all these applications, because trust me, if you watch a video, just go ahead and watch about the Chola dynasty and how well you will understand, because a lot of animation has been done. All the movements you will be able to track. अभी मैं बता रही हूँ तो आप उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, विजुअलाइज नहीं कर पाओगे. जब आप उसको देख पाओगे ना, वो आपके दिमाग से निकलेगा नहीं और बिल्कुल आपके मेमोरी में इनग्रेन हो जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू डू चेक इट आउट and you explore all the features of Imbibe, and Imbibe Lens is going to be a blessing for you. Just scan your book, see what are the topics that you are struggling with, not just social science, be it maths, be it science. आप कुछ भी स्कैन कर सकते हो, किसी भी टॉपिक को कर सकते हो, and trust me, you'll find some great entertaining, full of learning infotainment wale videos. So make sure that you do not miss on that. Now with this, I'm gonna end the session. Thank you so much for being here. I'll see you guys soon. Till the next time, take good care of yourself, stay safe, and do not forget to hit the like button if you enjoyed the session. Do subscribe to the channel, and do tell me in the comment section if you have any feedback, any questions, any doubts, or any other suggestions that you would want me to bring in terms of videos. And I'll see you very soon. Till the next time, stay safe and keep imbibing.